Okay, so let's begin. Last time हम जो है वो Hartree-Fock equations, Hartree-Fock methods देख रहे थे. So we'll continue with that. And let me just recall. We had a Hamiltonian. Like this. And we called this as, H1 and this as H2. And we started with an antisymmetric wave function. Sum over all permutations over the Hartree wave function, where the Hartree wave function is just product of spin orbitals. And then the antisymmetric wave function is the antisymmetric combination of all permutations of this. And we said that we will use variational principle, and our goal is to find the stationary state of this integral. You saw that this is 1 and this is equal to sum of two terms, and we found both of those terms to be like this. This was sum over I lambdas, where I lambda is u lambda qi hi u lambda qi. And then the second term was sum over all pairs of lambda mu j lambda mu minus k lambda mu. And if instead of all pairs, we just sum over all lambdas and all mu's, this is just twice this, so we can put a half. With j lambda mu is the Coulomb integral and k lambda mu is the exchange integral. All right, so let's now write this energy, which is a functional of this psi. Functional हम कहते हैं usually जो word use करते हैं functional होता है अगर कोई चीज फंक्शन हो किसी सिंगल वेरिएबल की, लाइक x y z t w etc. और फंक्शनल कहते हैं अगर जो फंक्शन है वो कुछ और फंक्शन पे डिपेंड करता हो. ऑफ कोर्स वो फंक्शन अगेन आगे कुछ वेरिएबल पे डिपेंड करता है, बट अगर आपके फंक्शन भी अननोन है जैसे u अल्फा, सॉरी नॉट ओनली अननोन बट दे आर वेरिएबल, दैट even this function u alpha u beta itself they can vary, then we call it functional. Actually inside of this bracket then we use this as well. It's nothing frightening, it's just that this is
depends on this, where the functions themselves are variable. You can loosely say so. अगर आप imagine करें कि जो multi electron atom है, it fills up sort of like hydrogen atom, and one electron, let's say, go to U1, the other electron go to U2, and so on. Then you can say, okay, each of this is like one of the functions. This U is product of space and spin coordinates. Okay, so let's now write the expression for E is ये वन था, इसके अंदर दो टर्म्स हैं, तो एक वो वाली एक नीचे वाली टर्म, इसका मतलब है दिस इज नथिंग बट सम ओवर लैम्डा प्लस सम ओवर लैम्डा सम ओवर म्यू जे लैम्डा म्यू माइनस के लैम्डा म्यू, एंड वी हैव n स्क्वायर कंस्ट्रेंट और कंस्ट्रेंट्स क्या है, कंस्ट्रेंट्स ये हैं this these functions form an orthonormal basis, and just to be explicit, ये जो constraint है you can check that अगर आप इसका वो लेते हैं conjugate तो it's going to be equal to this, क्योंकि इसका conjugate लेंगे तो ये तो यही है, इसका conjugate जो है ये this u beta would be here, like this. So it means u alpha beta is equal to u beta alpha conjugate. So ये हमारे पास constraint है और ये function है जिसको हमने वेरी करके तो इसकी जो sort of stationary value है वो find करनी है. So for that we have this method of variation in which we need to solve this equation. Since we have n square constraint, so we introduce n square epsilon lambda mu constants. U lambda u mu. So generally we just put the derivative equal to 0 to find the stationary values, but since we have constraints, so we have to subtract the variation in constraint multiplied by what are called Lagrange constants. इसकी जो method की derivation है, you can check in some calculus book. So this is the equation that we need to solve by varying these functional u alpha, u beta, u gamma. You see, our goal is to find these u alpha, u beta, u gamma. क्योंकि जब हम एक दफा ये मिल जाएंगे, then we can write our antisymmetric wave function, and once we have antisymmetric wave function, we can quickly find energy. क्यों? क्योंकि इस पे हैमिल्टन अप्लाई करेंगे, you will get energy because h psi is equal to e psi. So normally आपको पता है कोई फंक्शन उसका वो स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करना तो क्या कर उसका डेरिवेटिव इक्वल टू 0 पुट करते हैं ना, लेकिन अगर फंक्शन में कंस्ट्रेंट भी हो तो देन डेरिवेटिव माइनस डेरिवेटिव ऑफ कंस्ट्रेंट मल्टीप्लाइड बाय सम कांस्टेंट होता है. तो अब यहाँ पे डेरिवेटिव की जस्ट वेरिएशन है बिकॉज वी आर गोइंग टू वेरी विद रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ these unknown functions. Loosely for physicists, this is the difference. So normally we have this dv by dx is equal to 0. But if we just talk about variation in y, then we say that dy is 0. So when we vary x by small amount, whatever is the value of dy, that's the variation in y. So they're both equivalent as far as equal to 0 is concerned. Okay. So and in this case we can't really even compute the derivatives as well because we don't have variable, but we have sort of functionals. We can do
but that using perhaps chain rule, but then becomes complicated. और चूंकि इस काम के लिए to find where this derivative is zero, all we have to worry about is just this dy being zero, right? Because if this is zero, then it means that dy by dx is zero. Okay, so this is the equation that we have to solve. And क्योंकि हमारे पास n फंक्शंस है ना, ठीक है, तो उनके आपस में n स्क्वायर इंटेग्रल्स होंगे, तो वी हैव पर्टिकुलर कंडीशन फॉर दोज इंटेग्रल्स कि वो इंटेग्रल अपने साथ नॉन जीरो हो और दूसरों के साथ जीरो हो, और वो सब हर एक में है। यानी अगर आपके सेट में लेट से 3 फंक्शन है, यूएल, यू अल्फा, यू बीटा, यू गामा, तो आपके 9 इंटेग्रल बनेंगे टोटल। तो उन इंटेग्रल की पर्टिकुलर वैल्यू फिक्स्ड है, ठीक है ना। एंड दिस इज द रूल दैट वेरिएशन इन फंक्शन माइनस कांस्टेंट टाइम वेरिएशन इन कांस्टेंट। और चूंकि वो उन एन स्क्वायर की पर्टिकुलर फॉर्म भी है, तो मैंने इसको डबल सम की फॉर्म में लिख दी, बिकॉज यू नो देयर यू लैम्डा यू म्यू, तो उसके साथ एक कांस्टेंट यू लैम्डा म्यू लगा दी। और एट द एंड अब हमारा जो मकसद है वो ये अननोन कांस्टेंट्स भी हम फाइंड करेंगे, और जो फंक्शन है यू अल्फा यू बीटा वो भी फाइंड करेंगे। दैट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। So for this, let's try to find out delta E first. So delta E क्या होगा? Delta E is sum over lambda. यहाँ पे I lambda है, पहली जो टर्म है। I lambda क्या है? I lambda है U lambda star H I U lambda D Q I, राइट? ये है I lambda। अब हमने इसकी वेरिएशन फाइंड करनी है विद U lambda। सो essentially the derivative coming here. So एक टर्म में इसका डेरिवेटिव आ जाएगा और एक टर्म में इसका, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ऑफ U lambda है, so we'll have the other term as this is the variation in I lambda plus, अच्छा जो J lambda mu इंटेग्रल है ना, लेट्स रीराइट देम। सो जो J lambda mu है, जो Q J पे इंटेग्रल है, let me just call it J mu of Qj and U lambda QI DQI। ये देखें, ये डबल इंटेग्रल था, एक QI पे है, एक QJ पे इंटेग्रल है। जो QJ वाला है मैंने इधर लिख दिया, वेयर दिस J lambda is, J mu is U mu QJ is 1 over Rij U mu QJ DQJ। इसको इसी तरह जो K lambda mu है, let me write it little bit differently. By the way, I'll give you these notes, so अगर आप नाम भी लिखना चाहें तो you can, you know, write them. So let me call it some K prime lambda mu QI तो ये भी सिर्फ QI का फंक्शन होगा, क्योंकि QJ तो इससे इंटीग्रेट आउट हो रहा है ना। तो दिस इज U mu now QI
dqi where k lambda mu is u mu qj over rij u lambda q आई वाले इधर है तो जे वाले इधर आ गए जे डी क्यू जे। तो जस्ट इनको रीराइट किया है यूजिंग अनदर फंक्शन ताकि ये वेरिएशन वाला पार्ट लिखने में आसानी हो जाए। सो आई लैम्डा की वेरिएशन हमने ये लिख दी। नाउ हाँ ये दोनों में जे लैम्डा म्यू की डेफिनेशन तो यही है ना, ये सारे इधर रखते हैं तो ये जे लैम्डा म्यू है, यानी इस इंटीग्रल की इधर रखते हैं तो ये जे लैम्डा म्यू की डेफिनेशन है, ये लास्ट टाइम हमने जो देखी। तो जस्ट उसकी एक मैंने उसको थोड़ा रीअरेंज किया, एक टर्म जो है उसको जरा सेपरेट एक नाम दे दिया आसानी के लिए लिखने के लिए। ठीक है, असल में तो ये डबल इंटीग्रल है ना ओवर क्यू आई क्यू जे, जिसमें क्यू आई दोनों सेम टाइप के ऑर्बिटल में है, क्यू जे दोनों सेम टाइप के ऑर्बिटल में था, नीचे आर आई जे था। ठीक है, तो मैंने जस्ट उसको थोड़ा सा रीअरेंज किया है अब वेरिएशन की सहूलत के लिए। जो एक्सचेंज है उसमें इंटीग्रेशन क्रॉस पे है, यानी यू लैम्डा में अगर क्यू आई है तो फिर क्यू आई यू म्यू में है, तो यू म्यू में क्यू जे है तो फिर क्यू जे यू लैम्डा में है। ठीक, तो जस्ट वो टर्म जरा थोड़ी सी इस तरह से करके लिखी। ओके सो अब लेट्स कंटिन्यू राइटिंग दिस डेल्टा ई। So this will become half lambda mu। अब जे म्यू डेल्टा म्यू की जो वेरिएशन है वो होगी डेल्टा यू लैम्डा स्टार जे म्यू यू लैम्डा डी क्यू आई प्लस यू लैम्डा स्टार। अब जो है वो तीन टर्म्स आएंगी, डेल्टा यू लैम्डा, क्योंकि इस वाले में हमने इसकी नहीं लिखी थी बिकॉज देयर इज नो स्पिन ऑर्बिटल इनसाइड दिस ऑपरेटर, लेकिन यहाँ पे जो जे म्यू है इसके अंदर भी ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, so there's another term which would be this is a little bit tricky, but let me first write then explain. Delta u mu star qj j lambda qj u mu qj dqj plus u mu j lambda of qj delta u mu of qj dq। Basically let me rewrite this thing. जे लैम्डा म्यू का पूरा पूरा दोबारा लिख लेते हैं, पूरा लिखे तो दिस बिकम्स यू लैम्डा स्टार क्यू आई यू म्यू स्टार क्यू जे यू लैम्डा क्यू आई यू म्यू क्यू जे डी क्यू आई डी क्यू जे।
ये है राइट। सो बेसिकली इसके अंदर चार जो हैं वो ऑर्बिटल। तो इस पे जब डेरिवेटिव लगाएंगे तो प्रोडक्ट रूट से चार टर्म्स आएंगे। एक दफा इस पे, एक दफा इस पे, एक दफा इस पे, एक दफा इस पे। तो मैंने वो चारों टर्म्स लिखी हैं बस, लेकिन साथ में ये किया है कि जब लेट्स इसका लिख रहा हूँ तो इन दोनों को मिला के मैंने ये जे लिख दिया। फिर इसी तरह जब इसका डेरिवेटिव लिख रहे हैं तो इन दोनों को मिला के जे लिख दिया। लेकिन जब इसका लिख रहे हैं फिर इस और इसको मिला के मैंने जे लिख दिया है, विच इज फंक्शन ऑफ क्यू जे। ये क्यू आई का फंक्शन था, ये वाला। और इसी तरह जब वो दूसरी टर्म का लिखा है तो ये जे लेमडा क्यू जे लिख दिया। इसका बाद में हम देखेंगे कि इससे इक्वेशन जो है वो सिंपलर फॉर्म में आ जाती है। तो मैंने टर्म टर्म चारों ही लिखी हैं, लेकिन वो जो एक इंटेग्रल है उसको एक और सिंबल से रिप्लेस कर दिया। इसी तरह जो किए है उसके अंदर समझ आ गई इस स्टेप की? ठीक है साजिद? ओके, सो लेट्स राइट, कीप राइटिंग फॉर द वेरिएशन इन के लैम्डा म्यू। के लैम्डा म्यू में वेरिएशन आ जाएगी डेल्टा यू लैम्डा स्टार के प्राइम लैम्डा म्यू क्यू आई यू लैम्डा क्यू आई डी क्यू आई माइनस यू लैम्डा स्टार के प्राइम लैम्डा म्यू क्यू आई यू म्यू ऑफ क्यू आई डी क्यू आई माइनस डेल्टा यू लैम्डा स्टार के प्राइम म्यू लैम्डा क्यू जे यू म्यू क्यू जे के प्राइम म्यू लैम्डा क्यू जे डेल्टा यू लैम्डा क्यू जे क्यू जे। भाई साहब इसका की कैलकुलेशन अगर आपको पेपर पे करके नोट्स दे दिए जाए तो क्लास में अगर हम सिर्फ कैलकुलेशन हटकर वैसे डिस्कस करें तो कैन यू गाइस अंडरस्टैंड दैट? दिस सीम्स लाइक अ वेस्ट ऑफ टाइम just walking you, you know, through the steps. Chale, excellent. If you can do that, then it will be great. So let me, you know, continue with the logic, and then I'll just write the equation only as well. अच्छा, अभी वेरिएशन जो है ना वो खत्म नहीं हुई। So let's, क्योंकि अभी हमारे पास वो आखिरी वो वाली भी टर्म है, हमने डेल्टा जो है वो यू लैम्डा यू आई भी लिखना है। और जस्ट टू रिकैप, यू लैम्डा क्यू आई यू म्यू क्यू जे is nothing but the qi is a single integral u lambda star qi u mu qi dqi। ठीक है, तो इस पे जब वेरिएशन लगाएंगे तो वी विल हैव ओनली टू टर्म्स, एक इसके लिए एक इसके लिए आगे। सो वो आ जाएगी माइनस सम ओवर लैम्डा सम ओवर म्यू एप्सिलॉन लैम्डा म्यू यू लैम्डा यू म्यू, और दूसरी आ जाएगी यू लैम्डा स्टार डेल्टा यू म्यू डी क्यू। अच्छा, अब the next step is that we take, you know, everything on one side, and this is equal to 0. तो ये बेसिकली इस तरफ था, तो इसको मैं राइट साइड पे अगर ले आऊं तो आई शुड हैव दिस प्लस। ठीक है, बेसिकली डेल्टा ई माइनस दिस जो है उसको हमने जीरो करना था, तो डेल्टा ई तो ये आ गया, तो इसको माइनस की बजाय मैं इस तरफ ले आऊं तो ये जो इक्वेशन है दिस विल बी इक्वल टू 0। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस टू फाइंड, यू नो,
u lambda and u mu's that satisfy this equation, and that's easy. All we have to do is separate out. एक तो ये है कि हम इन सबको एक इंटेग्रल जो है उसकी फॉर्म लिख सकते हैं. दूसरा, we separate out the terms that contain variation in u lambda star and the terms that contains variation in just u lambda, जैसे इस तरह की जो terms हैं. So let me do it. अब मैं पूरी इक्वेशन नहीं लिखूंगा. Let me just write it. So we collect all the integrals that have delta u lambda and then all the integrals that have delta u lambda, and this is equal to 0. So अब ये जो दोनों variations हैं ये एक दूसरे से independent हैं. ठीक है, this is variation in one function, this is in another function, or this equation will be 0 only. And since these are definite integrals, these are not indefinite integral over particular limits, so these integrands have to be 0, both of them individually, for this equation to be 0, which means that I will have, so अगर आप ये इकट्ठी करें तो इसके कोएफिशिएंट बनते हैं sum over lambda hi u lambda qi plus half sum over lambda sum over mu j mu qi u lambda qi plus j mu qi u lambda qj minus k prime, ये सम इस पे चलता आ रहा है, qi qj u mu qi minus k prime lambda mu sum over lambda sum over mu epsilon lambda mu u mu y. और फॉर्चुनेटली दूसरी से भी ये इक्वेशन आती है, दोनों से एक ही इक्वेशन निकलती है. तो ये अब हमारे पास इक्वेशन आ गई है. ऐसे फंक्शंस u lambdas which satisfy this equation, they will make sure that the this equation is 0, which will make sure that E is stationary. जिस इक्वेशन को हम सॉल्व करने निकले. ऑल राइट, सो अब ये जो इन जनरल जो u lambda म्यूज हैं, ये अगर इस तरह से आपके ये जो u lambda म्यूज है इन जनरल दे आर non-diagonal matrix, they form a non-diagonal matrix, but still it is symmetric because we know that this is equal to its transpose conjugate. क्योंकि वो जो constraints थे they satisfy this condition. अगर आप switch करें तो they are equal to their conjugate. So it means this Lagrange constants also satisfy this thing. So this is a symmetric but a non-diagonal matrix. But we can introduce, let's say, a unitary transformation that takes our u mu to multiply with some u to, let's say, some u mu prime, such that if I substitute that there, then it becomes a diagonal matrix. That if I, at u lambda, let's say we put u lambda u, and then there will be a u here, u everywhere, and then we multiply with the u inverse from this side. So this, the sandwich between this, but we select this u in such a way that
it becomes a diagonal element, the diagonal matrix. Then our equations become simpler, because then I can take that on this side and there is only a sum over lambda which can be taken out common. So we have hi, and then जो prime है, I'm not using the prime again. These are our new functions. Sum over mu, j mu, एक्चुअली ये j कोई नहीं है, सब qi है, ये मैंने गलत लिखी है, माइनस sum over mu, j mu, u lambda minus k, u mu, qi minus e lambda, u lambda. So now this is a series whose sum is equal to 0. So this means that in general this will be 0 if each of the coefficient is 0. So we can, get away by dropping this term, and then this is our equation for each lambda. So lambda is, uh, our alpha, beta, all the way to gamma, and our I is 1, 2, all the way to n. So ये जो hi है, this will depend on qi. So we have one equation for q1, then this would be h1, and this lambda will be alpha. Then we have another equation for h2, and this would be like lambda beta and so on. So this is the set of equation that we have to solve to find these u lambdas. These are called Hartree-Fock equations. और यहाँ पर अभी तक जो है they are the spin orbitals, but instead of spin orbitals we can introduce the space equations for spatial orbitals. So for that, let's this u lambda qi be some function u lambda of ri times a spin function, let's call it chi, like this. So this is our well, actually let's call it ms ये lambda है. Let me write a lambda here. Okay. And now if we introduce these here, तो हर u lambda की जगह पे आप पुट कर दें u of ri into spin function, u of mu into spin, and so on. जहाँ पे mu है वहाँ पे spin के साथ ms के साथ mu आएगा, जहाँ पे lambda है वहाँ पे ms lambda, and so on. And then you recall that two functions, two spin orbitals, they satisfy this orthogonality property. कि अगर दो स्पिन ऑर्बिटल्स हैं और दोनों का स्पिन सेम है, वी गेट 1. अगर दोनों का स्पिन डिफरेंट है तो चूंकि स्पिन ऑर्बिटल्स ऑर्थोगोनल है, वी गेट 0. तो ये जो ms लैम्डा कॉमा ms म्यू लिखा है, इसका मतलब है कि दिस डेल्टा इज 1 ओनली व्हेन द स्पिन ऑफ लैम्डा एंड म्यू ऑर्बिटल इज द सेम. तो अगर हम हर स्पिन ऑर्बिटल की जगह पे ये इंट्रोड्यूस कर दें, जहां पे u लैम्डा है वहां पे काई ms lambda, और जहां पे u mu है वहां पे chi ms mu, and then let's say we take a dot product with the other with ms lambda. So this is for each lambda, so we take dot product with chi ms lambda. So this will survive क्योंकि इसके साथ ms lambda है, तो ms lambda के साथ dot product ले रहे हैं, तो ms lambda 1. यहाँ पे u lambda
So इसके साथ भी ms lambda होगा, this would be 1, but this is a different orbital, this is u mu. So यहाँ पे we will have the orthogonality relation that when uh, mu and lambda have the same spin, this will survive, but when mu and lambda doesn't have the same spin, they will not survive. So remember, जो lambda है वो भी काफी सारे ऑर्बिटल है, lambda अल्फा बीटा गामा है, जो mu है वो भी अल्फा बीटा गामा है. So you can, यहाँ पे मैंने लिखा है काई एम एस म्यू, और जब काई एम एस लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जरूरी अब उधर ही आप जीरो नहीं करेंगे, क्योंकि इन जनरल जो म्यूथ ऑर्बिटल है उसकी कुछ स्पिन है और लैम्डा ऑर्बिटल की कुछ स्पिन है, तो कभी वो सेम हो सकती है, कभी डिफरेंट हो सकती है. सो वी नीड टू कीप दिस डेल्टा हियर. लेकिन अगर ऑर्बिटल सेम है लैम्डा, तो देन वी कैन जस्ट पुट 1. क्यों? क्योंकि एम एस लैम्डा इज इक्वल टू एम एस लैम्डा एनीवे. सो फ्रॉम हियर वी विल हैव दिस इक्वेशन माइनस हाफ डेल आई स्क्वायर. ये मैंने एच की वैल्यू पुट कर दी है, u lambda of ri now, and सर ये कैमरा जरा स्विच कर ले. अच्छा सॉरी, कैमरा. so sum over mu and we have u mu star r something rj, let's say u mu rj drj into u lambda rj minus sum over mu delta ms lambda ms mu u mu of ri is equal to e lambda u lambda. Let's make it epsilon lambda. तो ये वो ही Lagrange coefficient है. Don't think that it's energy of the lambda orbital. It has connected with energy, but you'll see that later on. So अब ये हमारे पास equations बन गई हैं. ये वो मैंने J की definition put कर दी है, ठीक है, उसके अंदर जो है, और ये जो K है उसकी definition put कर दी है. अब so these are, you know, Hartree-Fock equations. Hartree only has this term, that, and this. He didn't have this term, exchange term. और एक्सचेंज टर्म में देखें कि वही इंटेग्रल जो है आपको कंप्यूट करने हैं फॉर डिफरेंट ऑर्बिटल यू लैम्डा म्यू फॉर होम द स्पिन इज द सेम. अगर आप लेट्स से इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं लैम्डा ऑर्बिटल के लिए, तो देन जो ये एक्सचेंज इंटेग्रल है ये उन इंटेग्रल के लिए सर्वाइव करेगा जिनका स्पिन वही है जो कि लैम्डा ऑर्बिटल का है. लेट्स से अगर आप लिथियम एटम को इमेजिन करते हैं लाइक देयर 3 इलेक्ट्रॉन, अगर ग्राउंड से 1s 1s 2s की बात कर रहे हैं, तो 1s के लिए अगर सॉल्व कर रहे हैं तो 1s और 1s का जो एक्सचेंज इंटेग्रल है वो सर्वाइव नहीं करेगा, क्योंकि दोनों की सेम, हाँ वो करेगा क्योंकि उनकी स्पिन सेम है, लेकिन जो 1s का 2s के साथ इंटेग्रल है वो सर्वाइव नहीं करेगा. यू डोंट हैव टू कंप्यूट दैट, क्योंकि डेल्टा उनका जीरो हो जाएगा, अनलेस ऑफ कोर्स के जो 2s है उसका स्पिन भी सेम है. सॉरी 1s का भी नहीं करेगा, क्योंकि 1s एक में स्पिन अप है एक में स्पिन डाउन है, तो जो 2s है उसका उस 1s के साथ करेगा जिसका स्पिन सेम है, जिसका डिफरेंट उसके साथ नहीं करेगा. अच्छा, इन इक्वेशंस को जो है वो हम थोड़ा सा रीराइट कर सकते हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग दिस थिंग, दैट लेट्स कॉल दिस सम vd mu and let's call this थोड़ा सा जो है ना वो मसला है, मैं इसको लिखना चाह रहा हूँ समथिंग अप्लाइड ओवर यू लैम्डा. तो लेकिन ये है यू लैम्डा, यहाँ पे बता यू म्यू है, ठीक है. तो फॉर दिस, और यू लैम्डा जो है ना वो इनसाइड इंटेग्रल है. लेट्स डिफाइन एन ऑपरेटर.
and we call it exchange operator. So this exchange operator, it let's say acts on some function f of r(i). So this is muth exchange operator. So suppose it gives us u mu star rj 1 over rij f of rj drj u mu r i। हम इसको बजाय पोटेंशियल के, वो तो मैंने पोटेंशियल डिफाइन कर लिया, क्योंकि अगर मैं उसको उस तरह से कहता हूं तो देन this sum over all of those potentials I can call it some v and I can now add it here, ठीक है, क्योंकि वो भी u lambda ये भी u lambda। अलबत्ता इसमें मसला ये है कि वहां पे बाहर u mu लिखा है, तो इंस्टेड ऑफ देन कॉलिंग इट अ पोटेंशियल, देन आई एम कॉलिंग इट अ पोटेंशियल ऑपरेटर। तो ये ऐसा पोटेंशियल ऑपरेटर है कि इसको अगर किसी फंक्शन f पे अप्लाई करें तो उस फंक्शन f को इंटीग्रल के अंदर लेके आता है, एंड देन जहां पे जो भी सिंबल है म्यू उसके साथ मल्टीप्लाई करता है। इसका मतलब है कि अगर f की जगह पे इफ आई हैव सम फंक्शन u lambda, it will take this, bring this u lambda here। तो इस डेफिनेशन के साथ ये जो चीज है, then this all of this becomes a potential operator applied on u lambda, and now I can rewrite this equation like this. So this becomes minus half del I square plus ये minus z over ri u lambda plus sum over mu v d mu of ri u lambda, और नीचे बचेगा sum over v with the minus sign minus delta ms lambda ms mu. Now this is operator v ex mu applied on u lambda ri. This is equal to Lagrange constant epsilon lambda mu lambda ri. अब जो है we can now introduce this sum over mu as potential Vd, and then this operator sum over mu as operator exchange operator Vx, and we can write this equation minus half del I square minus zri plus Vd plus V exchange acting over u lambda epsilon lambda u lambda ri। और अगर इस सारे को आप पोटेंशियल कह दें, to be more precise potential operator, epsilon lambda u lambda r। तो अब देखें, this is nothing but a Schrodinger equation for a single particle which is being acted on by this potential V, and this was what we were talking as a motivation in the beginning, के बजाय इसके कि हम प्रॉब्लम को बाय डेफिनेशन देखें जिसमें वी हैव मल्टी इलेक्ट्रॉन और हर इलेक्ट्रॉन को इंडिविजुअली हम देख रहे हैं किसका क्या इंटीग्रल है, कैन वी convert our problem to a single electron problem where it is being acted on by an aggregate potential due to everything else, and that potential has a term due to nucleus and a term due to sort of classical repulsion, classical repulsion of other electrons, and then a term which is purely quantum mechanical. मैं इसको क्लासिकल रिपल्शन इसलिए कह रहा हूं कि ये जो दोनों टर्म्स हैं बेसिकली 1 over r i j से आती है,
तो अगर हम सिर्फ रिपल्शन की बात करें तो वी शुड थिंक ऑफ बोथ, बट लेट्स से classically thinking this is that classical repulsion term, and then this is just because we require our wave function to be antisymmetric. Used ये है when we introduce the antisymmetric wave function. So we have an exchange potential, a direct potential, the nucleus potential, and this is all acting on this particle. And then what we have to do actually is कि जो हमारे पास एटम है उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन है, so basically we have n electrons. So for each one of the electron, we first need to compute the potential, and once we have potential, we can solve this equation, at least in principle, usually numerically, to find u lambda and epsilon lambda. और अभी थोड़ी देर में हम देखेंगे कि sure. जी जी सर, कैसे ये जो हमारे पास क्लासिकल पोटेंशियल है तो ये कोलम्बिक फॉर्म है, तो जो एक्सचेंज पोटेंशियल है तो इसका फंक्शनल फॉर्म क्या होगा? ये फंक्शन फॉर्म गिवन तो है, अभी हमने इसको डिफाइन किया हुआ है. दिस इज आल्सो एन इंटीग्रल, ये भी इंटीग्रल है. नहीं सर, फोर्स की बात कर रहा हूँ, लाइक ये कोलम्बिक फोर्स है, ये जो जो पोटेंशियल है, जो क्लासिकल आप कह रहे हैं, लेकिन जो जी जी एक्सचेंज वाला है तो उसका जो फोर्स है वो फंक्शनल फॉर्म में किस तरह से होगा? उसका उधर फोर्स 1/r² और उस फॉर्म में है जो कूलम फोर्स है. हाँ अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि जैसे इसको हम वो फोर्स को समझेंगे 1/r², तो आप इस पे ग्रेडियंट ऑपरेटर अप्लाई करके तो वो कंप्यूट कर लेंगे वो जो उसकी फॉर्म है. इट्स नॉट गोइंग टू बी 1/r², ठीक क्योंकि ये सेंट्रल फोर्स तो नहीं है. ठीक है सर. ये तो सेंट्रल फोर्स है ना, एक न्यूक्लियस है, आप जहां भी हैं वो आपको अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है. और ये फोर्स है, एक इलेक्ट्रॉन इधर है, एक इधर है, एक इधर है, कोई इधर है, तो कोई आपको इधर, तो दिस इज नॉट अ सेंट्रल फोर्स व्हिच इज ऑलवेज पुलिंग टुवर्ड्स सम डेफिनेट पॉइंट. एंड दिस इज आल्सो ठीक है सर. पोजीशन डिपेंडेंट. यहाँ पे है तो हो सकता है नेट फोर्स इधर को हो, यहाँ पे है तो हो सकता है नेट फोर्स इधर को हो, यहाँ पे है तो नेट फोर्स इधर को. लेकिन जो कोलम्बिक, ये जो है तो सारी कोलम्बिक फोर्सेस, बट दिस इज अ सेंट्रल फोर्स. सो ये सेंट्रल फोर्स है, which mean that you're always feeling a force towards the center. ठीक. So these are not central forces in general, but it's actually very difficult to solve this equation. क्योंकि इसमें एक तो देखें, पहला मसला ये है कि आपने ये पोटेंशियल कंप्यूट करने हैं, और ये पोटेंशियल कंप्यूट करने के लिए आपको पहले से ही ये वेव फंक्शन तो चाहिए सारे यू लैम्डा, ठीक है ना. ये जो डायरेक्ट है इसमें भी यू लैम्डास है, इसमें भी यू लैम्डा, म्यू लैम्डा, यू म्यूज दोनों है. सो ये प्रोसेस हम इस तरह से करते हैं इसके सोल्यूशन का, दैट वी एक्चुअली स्टार्ट विद अ गेस, कि आप जो यू लैम्डास है ना, यू स्टार्ट विद अ गेस. लेट्स से यू अल्फा आर, यू बीटा आर, यू gamma r, and so on. So you actually assume them initially to have a formula, and you start from there. You first assume all of them, and then let's say you are working with the first electron. तो तब आप जो बाकी सारे स्पिन ऑर्बिटल्स हैं उनकी मदद से जो आपने assume किए हैं अभी, you compute these potentials. And ये पहले वाला भी है, और आपने पहले वाला इसमें इस्तेमाल नहीं किया, इसमें हो सकता है कहीं पे वो इस्तेमाल हो फॉर एक्सचेंज इंटीग्रल. बट इन जनरल दिस डिपेंड्स ऑन ऑल अदर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स. आप कंप्यूट करें, देन यू सॉल्व दिस इक्वेशन, और you will find a u lambda which is slightly different from your first u lambda that's you assume. आप वो यहाँ पे रख लें, so have an updated u lambda. फिर आपने दूसरा जो ऑर्बिटल है उसकी अपडेटेड वैल्यू कंप्यूट करनी है. देन यू टेक ऑल अदर, दिस वन एंड ऑल ऑफ दीज, एंड देन कंप्यूट दीज पोटेंशियल्स फ्रॉम देम, और फिर एक यू बीटा की नई वैल्यू कंप्यूट करें. सो यू हैव एन अपडेटेड वैल्यू फॉर यू बीटा. फिर इसी तरह इसकी अपडेटेड वैल्यू, एंड सो बारी बारी सारे जो ऑर्बिटल्स हैं यू हैव देयर नेक्स्ट आइटरेटेड वैल्यूज, एंड देन यू स्टार्ट ओवर अगेन. You again compute a new value of u alpha by taking all of these. तो इस तरह सारे, और कब आप स्टॉप करेंगे, क्योंकि हर दफा जब आप ये करते हैं you compute E as well. Okay. And क्योंकि जब आपको ऑर्बिटल्स आ गए, एनर्जी आप क्विकली कंप्यूट कर सकते हैं. वो जो इनिशियल वो है इंटीग्रल ये वाला, दैट्स psi हैमिल्टोनियन psi. so इससे आप जो E है, you can compute whenever you have an updated set, you can compute this E. So you can implement a criteria either based on this thing के जब आपने एक पूरी इटरेशन मुकम्मल कर ली है तो जो नए यू अल्फास हैं
they are almost the same as the previous, spin orbital, then you can stop. Or maybe you can put a condition on energy. Your energy is changing, but after a while you see that it's not changing at all, and your functions are also not changing. You can stop. So ये जो iterative process है, इसकी मदद से हम इसको solve करते हैं. But even with this iterative process, this is still a complicated equation. इसमें एक तो देखें, ये पोटेंशियल भी आर वेक्टर पे डिपेंड कर रहा है, और ये जो ग्रेडियंट ऑपरेटर है ये भी आर वेक्टर बेस्ड है. ठीक है, इसका मतलब है इट डिपेंड्स ऑन आर थीटा एंड फाई. एंड टू मेक लाइफ इजी, if we make one assumption, then we can convert these equations from 3-dimensional space. अच्छा, एक फायदा वैसे है, हर इक्वेशन अब जो है उसमें सिर्फ 3 ही वेरिएबल है, r theta phi, r theta phi, r theta phi. So this is a 3-dimensional equation. So ये तो भी एडवांटेज है. अलबत्ता we can convert this into 1-dimensional equation just in a little bit, but let me just stress this 3D thing. तो ये जो इंडिविजुअल ऑर्बिटल्स पोटेंशियल है ना, ये vd, ये vx, इनमें भी 3D इंटेग्रल्स हैं जस्ट जो इन्वॉल्व हैं, 6D इंटेग्रल्स नहीं है. जैसे हम वो जो प्रीवियस एग्जांपल्स में जब बाय डेफिनेशन कर रहे थे, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन के लिए यू गेट टू लाइक 6-dimensional इंटेग्रल. लेकिन यहाँ पे अभी भी जो vd है वो क्या है, vd भी 3D इंटेग्रल है. क्योंकि vd सम है इन टर्म्स का, और ये सिंगल इंटेग्रल है. ये दिस इज इंटेग्रल ओवर अ वॉल्यूम एलिमेंट बाय rj. सो ये भी 3-dimensional. तो इसमें जो 1/r1 - r2 टाइप आता है, उसमें एक जो है वो कांस्टेंट है, क्योंकि ये सिर्फ j पे इंटेग्रल है, तो r1 इज अ कांस्टेंट. So all integrals are 3-dimensional integrals. But let's see if we can actually reduce them even further, because this is still a complicated problem. And for that, let me first motivate you. Not sure if you have noticed this thing before, कि जो completed subshells हैं, completely fill subshell. So subshell हम define करते हैं. Shell normally कहते हैं those orbitals that have the same n quantum number, जैसे n1, n2, n3. और subshell जिसमें हम जो l है उनकी वैल्यू सेम है. जैसे जो हाइड्रोजन की अगर बात करें, तो जो s ऑर्बिटल है 1s, you know, it is completely filled if there are 2 electrons. ठीक है, और इसी तरह जो 2s है, 2, इस तरह जो फिर 2p है, 2s, 2p में आपको पता है कि 3 जो है वो ऑर्बिटल्स हैं और 6 स्पिन ऑर्बिटल्स हैं. ठीक है, so this is a subshell, this is a subshell, this is a subshell. अगर आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेक करें ना, एक कंप्लीटली फिल्ड सबशेल की, देयर ऑल स्फेरिकल सिमेट्री. एस का तो हम देख सकते हैं, आपको पता है जो 1s है, इसका जो वेव फंक्शन इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा एंड फाई. तो ये स्फेरिकली सिमेट्रिक है. जो इसी तरह 2s है, इसका भी जो वेव फंक्शन है वो r पे तो डिपेंडेंट है, लेकिन थीटा फाई से इंडिपेंडेंट है. अलबत्ता जो 2p है, इसके जो 3 ऑर्बिटल्स हैं, 2px, 2py, 2pz, वो जो है वो थीटा फाई पे डिपेंड करते हैं. आपको याद होगा दिस 2px इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू x. आगे भी कुछ और भी है, बट देयर इज एन x, सो x हैज इन इटसेल्फ sin थीटा cos थीटा. सो और जो अगर ड्रॉ करें, लेट्स से इसके आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सो जो px है, you know, it has a probability distribution like this. So the py है, it's proportional to y, so it has a probability distribution something like this. So the pz है, it's proportional to z, so it's like this. So each individual जो orbital है, it's not spherically symmetric, but if you add their probabilities, all 3 of them, they become spherically symmetric. That if you have an electron, electrons filling all the subshells in this 2p, the overall electron density is spherically symmetric. And actually, we can rigorously check it.
So अगर आप by the way स्फेरिकल हार्मोनिक की प्रॉपर्टीज भी देखें तो ये जो सब शेल्स है ना, उनके अंदर जो इंडिविजुअल ऑर्बिटल्स हैं, इन जनरल दे नॉट स्फेरिकली सिमेट्रिक। ठीक है, स्फेरिकली सिमेट्रिक हो भी सकते हैं और नहीं भी, जैसे 1s 2s है, ये स्फेरिकली सिमेट्रिक है। अलबत्ता जो 2p है, इसके जो ऑर्बिटल्स हैं स्फेरिकली सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, जैसे 2px में इलेक्ट्रॉन जो है उसके एक्स एक्सिस का लॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, ओके। नो इट्स नॉट दैट, वो जो है मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स, दैट्स समथिंग एल्स। सो ये एक सिंपल फैक्ट है कि इफ यू हैव अ कंप्लीटली फिल्ड सबशेल, तो इसका मतलब है योर टोटल प्रोबेबिलिटी इज द सम ऑफ द थ्री प्रोबेबिलिटीज। और अगर आप इन तीनों के जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस हैं उनको ऐड करें, एंड यू कैन एक्चुअली चेक, हमने ये दरमियान में कहीं बात भी की थी। सो ये जो px है, अगर ये लेट्स से दिस इज px की जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये py की, ये pz की, इनमें स्वाय x y z के बाकी सारा पार्ट सेम है, सो यू कैन टेक दैट आउट। ठीक है, और जो बाकी पार्ट एक्चुअली ये तो डायरेक्टली भी देख सकते, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज आर स्क्वायर विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा एंड फाई। बट इन जनरल भी for a completely filled subshell, जो R dependence it factors out, and then all you have inside are actually just these different spherical harmonics. And if you take the mod square and you sum over all possible values of m for a given L, then this is actually equal to 1. So I think it's one a constant. So it's a constant. So mathematically, we can also prove that in general, even for dx, d orbitals, for f orbitals, and so on, उसकी वजह simply ये है कि spherical harmonic का जो mod square है, if you sum it over all values of m for a given L, it's a constant. So for completely filled subshells, we know that the electron cloud is symmetric anyway. So इसका मतलब है कि in general तो नहीं, लेकिन for atoms like जो नोबल गैसेस हैं, ठीक है, हीलियम, नियॉन, जीनॉन, जो नोबल गैसेस हैं, दे हैव कंप्लीटली फिल्ड शेल। लेकिन उसके अलावा भी देयर आर एटम्स in the other part of the periodic table which may not have completely full shells but they have completely filled subshells. So उनके लिए भी, and we can also have ions, for example beryllium ion, या के जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वैसे ही रिमूव हो चुके हैं, या यू हैव लेट्स से क्लोरीन आयन है, तो उसके एक्सटर्नल सबशेल में एक इलेक्ट्रॉन कम होता है, व्हेन इट टेक्स वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम समवेयर इट बिकम्स अ क्लोरीन आयन, एंड देन दैट हैज अ स्फेरिकली सिमेट्रिक इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अब उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि ईच इलेक्ट्रॉन इज फीलिंग अ स्फेरिकली सिमेट्रिक इलेक्ट्रॉन क्लाउड, which means that, और जो स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, it has a potential which only depends on the radial distance r. It's independent of theta and phi के। और दूसरे लफ्जों में जैसे आसिफ फोर्स का कह रहे थे, तो at every point you feel a force towards inside or away from the center. So the force depends on r, कि अब यहाँ पे कुछ और force होगी, यहाँ पे कुछ और होगी, and the dependence may not always be 1 over r, क्योंकि 1 over r तो special है, but whatever the force or function dependence is, it's function of magnitude of r only. It doesn't depend on theta and phi. So जो completely filled subshell वाले atoms हैं, उनमें तो हम इसको the field is already central. जो न्यूक्लियस के अलावा दूसरा potential है, it's central anyway. But we can solve these equations in other atoms as well by assuming the potential to be central, and this is called central field approximation. So under central field approximations, we assume that our potentials, our these
individual orbitals, they are function of magnitude of r and some spherical harmonic. So theta phi dependence is spherically symmetric. So spherically symmetric distribution में जो आपके Schrodinger equation के solution में है, you always get some function of r multiplied by a spherical harmonic, which means that this del square operator actually और बल्कि अगर आप ये जो u lambda है, if you take a special form r inverse some p lambda of r, इस केस में जो, and this is still general enough, ठीक है, Zara, you can always divide this u lambda into r inverse and whatever is left in this p lambda. लेकिन इसका फायदा ये होता है कि जो del square operator है, okay, so let me move this one. So the del square operator है, it actually simplifies. In general, del square operator is 1 over r square d by dr r d. इस तरह का होता है या कहीं पे r है? ठीक है. So if you have, you know, some function of, you know, like this. अच्छा, इसमें एक दूसरा part भी है, sorry. So this is just the radial part. There is an L square over R square part as well. ठीक है. So जो बाकी वो partial theta, partial phi well derivative and they actually can be put into a form which is equal to L square over R square. So now if you operate it on something R inverse some P into YLM, so ये part है, this goes to L plus L into L plus 1 R square, और actually ये part भी इस R inverse की वजह से simplify होके just become D square over dr square. Now this operates only on P. It's इस बार मेरा नहीं ख्याल आएगा. So L square in itself, you know, has nothing to do with quantum physics. Del square को दो पार्ट में डिवाइड कर लें, उस पे ऑपरेट करें तो एच बार कहीं भी नहीं आएगा. ठीक है जी. हाँ, ये डी स्क्वायर ओवर डी आर स्क्वायर है. नहीं, सो दिस इज, असल में इसको करें ना तो ये एक 1 ओवर आर इधर भी आता है और वो सारी तरफ से कैंसिल कर दें 1 ओवर आर. सो योर इक्वेशन एक्चुअली ट्रांसफॉर्म टू अ फॉर्म लाइक दिस. सो बजाय इसके कि यू when you reduce to a central field approximation, your this operator becomes this operator and equations become much simpler. मैं ये नोट शेयर कर दूंगा, इसमें you can find the detail. So your operator then become d half dr square minus z over ri, sorry, plus L into L plus 1 2r square minus z over ri plus vd minus v exchange over some p epsilon lambda p. So this is p lambda, where p is only a function of r. और जब आपका actual orbital है, it's no this. क्योंकि इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दिस, जब आपने एनर्जी कंप्यूट करनी है तो वो सीधा सीधा उस पी लैम्डा से नहीं करनी. यू हैव टू देन वर्क विद दिस ऑर्बिटल जब भी कैलकुलेशन करनी है. तो अब जो है वो प्रोसेस अभी भी वैसे ही है, लेकिन अब थोड़ा कंप्यूटेशनली सिंपल हो गया. अगेन यू स्टार्ट विद एन इनिशियल गेस फॉर ऑर्बिटल, लेकिन अब जो है यू ओनली हैव टू गेस फॉर पी लैम्डा.
और अभी थोड़ी देर में I'll talk about people have actually most of the p lambdas they're motivated for hydrogen functions anyway. डेरिवेटिव p का हो रहा है. हाँ ये था ना असल में यहाँ पे u था पिछले स्टेप में. So if you replace u with this, then your del square is replaced with d by d r square l over l plus 1 2 r square. ठीक है. And now equation is only for p. क्योंकि r इनवर्स और जो y lm है they cancel from both sides. ठीक है. क्योंकि l square होगा तो ये वो इसका आइगन फंक्शन है. You get l into n plus 1 and y lm then can be taken common and can be cancelled from that side. इस तरह जो r इनवर्स है वो भी दूसरी तरफ से, क्योंकि इधर से तो वैसे ही मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, इधर भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर है और इसमें भी वो जब यू वर्क इट आउट देयर इज अ 1 ओवर r ऑन द आउटसाइड, तो 1 ओवर r तो कैंसिल हो जाता है. तो हमारे पास इक्वेशन जो है वो ये आ गई. बट लेट्स सी व्हाट दिस vd and v exchange are now. So vd would be a sum over l prime and mu ये lambda. So actually to reach this part we'll have to rigorously put this thing in and sum over l and multiply, take a dot product with the ylm from left side, so ylm mod square gives us this and then there's a sum over this and uske andar wo reh jayega. But let's even worry not worry about this thing. So ye jo equation hai isme all of this can be thought of this potential v. So this essentially is again the same thing that we have a single particle equation which is residing now in a central potential. क्योंकि हमने central field approximation ले ली है, तो that potential is central and we can easily solve the equation in only one coordinate. So single coordinate equation है बजाय three dimensional equation के. हाँ जी. नहीं फिर तो बनती है. आप देखें यू हैव लाइक 3 बैलून. आप अगर तीनों परपेंडिकुलर इमेजिन करें तो इट सॉर्ट ऑफ बिकम्स अ स्फेरिकली सिमेट्रिक थिंग. जो अगर तो 3 बैलून जो इधर से फूले हुए हैं इधर से और इधर से, तो वो स्पेस को फिल तो कर रहे हैं ऑलमोस्ट होलिस्टिकली. और जो कि बैलून में अभी भी ज़ाहिर है वी आर थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ डिस्क्रीट, तो अब वैसे ही हमें पता है पी एक्स है प्रोपोर्शनल टू एक्स, पी वाई वाई और पी जी जी के, और अगर उन सबका मॉड स्क्वायर लेके आप ऐड करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज आर स्क्वायर. क्योंकि उनके अंदर जो आर पार्ट है तीनों के अंदर वो कॉमन है, वो सेम है. अगर आप वो बुक से बेशक वो फंक्शन चेक कर लें. मसला ये है कि जो सेंट्रल फील्ड अप्रोक्सीमेशन इट ब्रेक्स डाउन व्हेन यू हैव अ जनरल एटम. ठीक है, क्योंकि हमेशा तो सारे ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल नहीं होंगे. And that's one problem with central field approximation, but the system is already actually too complicated to worry about those errors now. और बाय द वे ये लोगों ने कोड जो है इवन सॉफ्टवेयर पैकेजेस दे आर ऑल अवेलेबल दैट दे हैव implemented everything there.
So there are freedom, you can choose, different types of gases function. But these initial gases, ये जो p lambda है, so and then you just press the button and go home for a couple of days if it's running on some high performance computing center. आप atom specify करें and it will give you the energies and etc. Abhi khair, in the next lecture we relate the epsilon lambda to the energy of the system as well, because this epsilon lambda is not really uh, in a sense that energy of each electron कि आप अगर total energy find करनी है you sum for all e lambdas. That's not how it goes. जी हम्म हाँ हाँ, तो अब ये कह रहे हैं कि ये करने की जरूरत, तो ये करेंगे तो वो इक्वेशन बनेंगे ना जिनको कंप्यूटर में फीड करना है. अगर ये नहीं करेंगे तो कंप्यूटर को क्या पता कि आपने कौन सी इक्वेशन सॉल्व करनी है. समझ रहे बात कि नहीं? ये करके ही सारा तो ये इक्वेशंस आई है, अब इनको हम कंप्यूटर में इंप्लीमेंट करेंगे ना. हाँ देखिए, कंप्यूटर को तो आपने बस ये देनी है, उसको तो नहीं पता ये सारी कहाँ से आई. वो तो हमने सारा प्रॉब्लम किया है ना. एंड करने का हमें अब ये पता है कि इसके अंदर अप्रोक्सीमेशन कौन कौन से एंटर हुई है, सो दैट व्हेन वी गेट रिजल्ट वी डोंट स्टार्ट जंपिंग अप एंड डाउन. तो हमें पता है कि दिस इज स्टिल एरानियस रिजल्ट. और इसमें डिपेंडिंग ऑन द एटम एरर जो है वो वेरिएबल हो सकती है. अगर यू आर वर्किंग विद लेट्स से a noble gas, the results are going to be much better and in agreement with the experimental result than let's say if you're working with silicon जो कि 4 इलेक्ट्रॉन है जिसका आउटर शेल में. नहीं ये अब तो तीनों सेंट्रल है. ये तो ऑलरेडी सेंट्रल था, लेकिन अब ये भी सेंट्रल क्योंकि हमने ये अज्यूम कर लिया कि हमारा ऑर्बिटल सिर्फ आर डिपेंडेंट है, मैग्नीट्यूड डिपेंडेंट, थीटा फाई डिपेंडेंट नहीं है. देखिए पोटेंशियल जो भी है ये आर मैग्नीट्यूड डिपेंडेंट ही होगा ना अब, क्योंकि आप एक ये वी डी इंटेग्रल से आया ना, और इंटेग्रल आप ले रहे हैं आर मैग्नीट्यूड फंक्शन वाले से, तो जो भी करेंगे वो आर डिपेंडेंट ही होगा, उसमें थीटा फाई डिपेंडेंस तो नहीं आएगी. ये भी उसी को, ये दोनों 1/r(i)j से टर्म आई है, लेकिन ये टर्म आएगी अगर आप क्लासिकली पार्टिकल्स को के बारे में सोचेंगे कि देयर आर एन इलेक्ट्रॉन हियर, इलेक्ट्रॉन देयर, दे आर रिपेलिंग ईच अदर. क्यों? क्योंकि उस सोच में यू डोंट हैव टू थिंक देयर वेव फंक्शन हैज टू बी एंटी सिमेट्रिक. जो एंटी सिमेट्रिक रिक्वायरमेंट है इट कम्स फ्रॉम क्वांटम मैकेनिक्स. सो ये जो टर्म है ये उस एंटी सिमेट्री रिक्वायरमेंट की वजह से है. ठीक है, और इसलिए वी से दैट दिस इज अ क्वांटम मैकेनिकल सॉर्ट ऑफ टर्म, बिकॉज दिस यू कैन अगर से क्वांटम मैकेनिक्स तो सारे में इन्वॉल्व है, बट यू कह लें कि हार्ड कोर जो क्वांटम मैकेनिकल, या बल्कि इससे भी ज्यादा शायद एक्यूरेट स्टेटमेंट ही होगी कि दिस इज ड्यू टू द एंटी सिमेट्रिक रिक्वायरमेंट ऑफ द वेव फंक्शन. हाँ नहीं, इसका भी इस तरह का इंटीग्रल, इसका जनरल तो हमने वो बताया हुआ है ना, ये वी एक्सचेंज इट्स एन ऑपरेटर फॉर्म में है, और ये भी इंटीग्रल ही है बेसिकली. सो नेक्स्ट क्लास में ना वील टेक एन एग्जांपल ऑफ ब्रिलियम 4 स्पिन ऑर्बिटल वाली, एंड वील ड्राइव दीज इक्वेशन फॉर ईच वन ऑफ देम. और जो वी डी वी एक्स एक्सप्रेशन लिखेंगे इट विल मेक थिंग्स बिट क्लियरर फॉर यू टू इमेजिन, और इफ यू हैव टू इम्प्लीमेंट इट इन अ कंप्यूटर. और कोई क्वेश्चन? ताजिद इसको कंप्यूटर में इम्प्लीमेंट कर लेंगे. All we need is a capability to solve this equation. ठीक है, otherwise तो बाकी straight forward things हैं. चलें, thank you.